fan salpalainai sommo thani bukhaltei oro manjangnai joto borom gnang okra chakra songno tei hasteni gurum kuthumjak bororok chini luku fan no muthangui joyawi haro mojot thani sapni khaikhaino khaikha amai nana hamjagui আমাদের আজকের প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্বে রয়েছেন শ্রী নবদ্বীপ জমাতিয়া। কমান্ডেন্ট সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে রয়েছে 9টি প্লাটুন এবং নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে রয়েছে 7টি প্লাটুন। বিএসএফ প্লাটুনকে নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর নেতৃত্বে নায়ব সুবেদার প্রাণজিৎ দেববর্মা, মিনা দেববর্মা। এরপরেই রয়েছে ফরেস্ট প্লাটুন নেতৃত্বে ফরেস্টার রুহু দাস, হোমগার্ড প্লাটুন নেতৃত্বে সিনিয়র আন্ডার অফিসার গৌরব কুমরায়। এরপরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি 5টি ব্যান্ড প্লাটুন রয়েছে। আসাম রাইফেলস ব্যান্ড প্লাটুন নেতৃত্বে হাবিলদার কে বিকুলার, শ্রী দীপক সরকার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট বিএসএফ 10 প্লাটুন মনিন্দর রোহাল aboni basingo tongo Assam Rifles Platoon Boromindi Phamangkha Nayak Subedar NCC Senior Division Boys Platoon Boromindi Phamangkha Senior Under Officer Pratiksha Mishra aboni basingo tongo Boy Scouts Platoon Boromati Dulaingkha Prakash Dev aboni basingo tongo NSS PTF Band Platoon स्मार्ट मीटरिंग का काफ़ी चल रहा है पूरे कंट्री में। बिप्लब कुमार देव चीनी बिसिंग फाइस फाइटा শ্রী রমেশ বৈশ্য মহোদয় এবং প্যারেড রাষ্ট্রীয় অভিবাদন জানালেন। সালের পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। দেশের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার মহান দায়িত্ব আমাদের সকলে। যে কোনো মূল্যে প্রজাতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে আজকের এই সময়ে দেশবাসী হিসেবে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। Yang misal Afrika bisnis Tugura 20 August salni dibani hormadaro afro joto dokane thani total bontama sobika khastor yormani tongtormo chini ke rongbuchapni soi manthai Kok ni kok no puitu chawo Barot Tesha hayuni pandawo kuchuk achuk thai manphirnai Parade Commander Navadip Jamatia tabuk ini thayo thangi tango buskang ni program chini buskango Assam Rifles Platoon, CRPF Platoon, TSF 2nd Battalion Platoon। এর পেছনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি
Parade Commander Sri Navadip Jamatia, Commandant 8th Battalion DSR, এবং Parade Second in Command Sri Deepak Sarkar, Assistant Commandant 10th Battalion DSR, দুজনের নেতৃত্বেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আজকের প্লাটুনগুলো সালামি মঞ্চের দিকে। সালামি মঞ্চের সামনে বিএসএফ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর মনিন্দর রোহাল, এর পেছনেই এগিয়ে আসছে আসাম রাইফেলস প্লাটুন। সালামি মঞ্চের সামনে আসাম রাইফেলস প্লাটুন নেতৃত্বে নায়ব সুবেদার নূর বাহাদুর, এর পরেই রয়েছে সিআরপিএফ প্লাটুন। DSR 1st Battalion Platoon নেতৃত্বে নায়ব সুবেদার কৌস্তব ভট্টাচার্য, নায়ব সুবেদার প্রাণজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে সালামি মঞ্চের সামনে সালামি মঞ্চের সামনে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যান প্লাটুন, ডিস্ট্রিক্ট উইমেন প্লাটুন নেতৃত্বে উইমেন সাব ইন্সপেক্টর সালামি মঞ্চের সামনে ফরেস্ট প্লাটুন নেতৃত্বে হোমগার্ড অমল বাসী নজরুলের নেতৃত্বে সালামি মঞ্চের সামনে সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে সালামি মঞ্চের সামনে এনসিসি সিনিয়র ডিভিশন ফার্স্ট প্লাটুন নেতৃত্বে সিনিয়র আন্ডার অফিসার গৌরব গুহরায়, এনসিসি সিনিয়র ডিভিশন বয়েজ স্কাউট প্লাটুন সালামি মঞ্চের একেবারে সামনে এর পেছনে এগিয়ে আসছে এনএসএস প্লাটুন। সালামি মঞ্চের সামনে এনএসএস প্লাটুন নেতৃত্বে সিভিল ডিফেন্স প্লাটুন নেতৃত্বে লিডার সৌরভ সরকার। সালামি মঞ্চের সামনে আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অন্তিম প্লাটুন আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল প্লাটুন নেতৃত্বে লিডার নিশান জমাতিয়া। আজকের প্যারেডে 5টি ব্যান্ড প্লাটুন অংশ नियते। आशा 71वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। देशोनी पिलीसिनी चिसत सालोवा लाइबुनानी जहाओ आज्ञातो लुप्रानी लुगनो खा कहाम याफारो। आप सभी जानते हैं कि आज से ठीक 70 वर्ष पूर्व हमने अपने संविधान को लागू किया था, जिसने विविधताओं से भरे इस देश को एकता के सूत्र में केवल पिरोकर ही नहीं रखा, बल्कि हमारे संबंधों को गाढ़ा बनाया। इसमें निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश उस भारत का निर्माण करने के लिए हमें प्रेरित करता रहेगा, जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था।
लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। संविधान सभा ने अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीका ही उचित होगा। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ को उन्होंने अराजकता का व्याकरण करार दिया था और रक्त रंजित सामूहिक क्रांति से बचने की सलाह दी थी। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल बातचीत और शांति से नहीं निकाला जा सकता। इस शुभ अवसर पर मैं अपने देश के वीर जवानों का अभिनंदन करता हूं, जो दिन रात हमारी सीमाओं की सुरक्षा में डटे रहते हैं, चाहे जल हो, थल हो या फिर आकाश। किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए हमारी सेनाएं हमेशा सजग रहती है। देश की आजादी के लिए व देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं व उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आंतरिक सुरक्षा आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए मैं सभी अर्धसैनिक और पुलिस बलों का भी अभिनंदन करता हूं। उत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से एक छोटा राज्य है, पर अपने छोटे आकार के भीतर कई भाषाओं, रीति रिवाजों, परिधानों और धर्मों को समेटे हुए शांतिपूर्ण ढंग से समृद्धि की पथ पर अग्रसर है। राज्य की सरकार इसके सामाजिक विकास और समृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य की 70% से भी ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए किसानों के आर्थिक स्तर को बढ़ाए बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। राज्य सरकार ने किसानों की आय 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, सब्जी और फलों की खेती पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,90,000 छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 117 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, ताकि इससे वे खाद, बीज आदि खरीद सके। साथ ही साथ किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करने के लिए 14 किसान बंधु केंद्र खोले गए हैं। किसानों के विपणन की सुविधा के लिए सभी बाजारों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई से मिलकर धान की खरीदी की जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए करीब 30,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाया गया है। राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों के भविष्य के उपयोग के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस उद्देश्य के लिए 6,000 हेक्टेयर जमीन में विभिन्न फसलों की खेती के लिए 9,000 किसानों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। उनका प्रोजेक्ट त्रिपुरा ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत बेचा जा रहा है और इसकी टैगलाइन है मंत्र टू हेल्दी लिविंग। किसी भी प्रदेश का विकास तीव्र गति से तभी होता है जब उस प्रदेश में आवागमन की अच्छी सुविधाएं हो। इसलिए राज्य सरकार त्रिपुरा को हवाई सेवा, रेल सेवा, सड़क सेवा और जल मार्ग सेवा से जोड़ने के लिए हीरा अवधारणा के तहत प्रयासरत है। दुर्भाग्यवश भारत के विभाजन के पश्चात त्रिपुरा भारत के मुख्य भूभाग से कट गया। रेल और जल मार्ग विच्छिन्न हो गए, परंतु इन मार्गों को
पुनर्जीवित करने के लिए बांग्लादेश की सरकार से मिलकर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि चटगांव और मोंगला बंदरगाह से माल की आवाजाही जल्द ही शुरू होगी। सोनामुड़ा दाऊदकंडी जल मार्ग खुलने के बाद बाहर से आने वाली वस्तुओं पर परिवहन व्यय कम होगा। अगरतला अखौरा रेल मार्ग भी इस कड़ी में मील का पत्थर साबित होगा। आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि लोगों को कृषि से निकालकर उद्योग धंधों और सेवा क्षेत्र में लगाया जाए। आधुनिक त्रिपुरा के रूपकार महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन सरकारी छुट्टी के रूप में घोषित किया गया है और अगरतला हवाई अड्डे का नाम भी महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया है। त्रिपुरा के लोग गरिया पूजा धूमधाम से मना सके, इसलिए इसे भी एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों जैसे बांस, चाय, रबर, सब्जी, बागवानी, फसल, मसाला इत्यादि पर आधारित छोटे और मध्यम आकार के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इन क्षेत्रों में मूल्यवर्धन से लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। रबर सीट की गुणवत्ता को उन्नत करके बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए आने वाले 3 वर्षों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उसी तरह विद्युत व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि उद्यमों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली दी जा सके। राज्य सरकार ने त्रिपुरा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2017 को संशोधित कर आकर्षक बनाया है और होटल व्यवसाय, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया है। सरकार की यह कोशिश है कि अधिक सुविधा देकर निवेश को बढ़ावा दिया जाए और रोजगार के अवसर पैदा किया जाए। नए उद्योग धंधों की स्थापना में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के द्वारा दिया जाने वाला अनुमोदन समयबद्ध सीमा में किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाकर पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। मनरेगा के तहत 2019-20 के लिए राज्य का श्रम बजट बढ़कर 4 करोड़ व्यक्ति दिवस हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इन सब कदमों से राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। विश्व के कई देशों ने और भारत के कई राज्यों ने भी यह दिखलाया है। पर्यटन उद्योगों में भारी संख्या में रोजगार सृजन करने की क्षमता है और इस माध्यम से लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सकता है। त्रिपुरा में छविमुरा, उनाकोटी और डुम्बुर जैसे पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। बिना मानव संपदा विकास के लंबे समय तक आर्थिक विकास के दर को बराबर नहीं रखा जा सकता। स्वास्थ्य और शिक्षित समाज के बुनियाद पर ही एक सुखी, संपन्न और आत्मनिर्भर राज्य का निर्माण हो सकता है। यद्यपि पिछले वर्षों में राज्य ने शिक्षा के विस्तार में अभूतपूर्व सफलता पाई है, पर शिक्षा के गुणात्मक स्तर के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। गुणात्मक परिवर्तन के लिए सरकार ने वर्ष 2019-20 से पहली से 12वीं तक के सभी कक्षाओं में NCERT पाठ्यक्रम लागू कर दिया है, जिसके तहत शैक्षणिक वर्ष जनवरी दिसंबर से बदलकर
अप्रैल मार्च हो गया है। तीसरी से 8वीं कक्षा के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई दिशा नामक अभियान चलाया गया है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 24 विद्यालयों में पहली बार व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है। राज्य में आईएएस परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक नई योजना लक्ष्य लागू की गई है। मेधावी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड के लिए छात्रों को प्रायोजित करने के लिए मुख्यमंत्री बीएड अनुप्रेरणा योजना शुरू की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। उपनिषद का यह मंत्र ही आयुष्मान भारत योजना की प्रेरणा है। इस योजना के तहत गरीब और वंचित परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की चिकित्सा का लाभ दिया जाता है और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। राज्य में अब तक 8,65,000 लाभार्थियों को इस योजना के तहत ई कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 47,000 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की गई है। अचानक आई बीमारी एक गरीब के घर को उजाड़ देती है। इस योजना के चालू होने से हजारों गरीब परिवारों का घर उजड़ने से बच गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक अस्पतालों में बुनियादी ढांचों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगरतला में नया कैंसर अस्पताल चालू हो चुका है। जीबी अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट पब्लिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण, अपरक्षण और एनीमिया की चुनौती का सामना करने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से सही पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। 45,000 से अधिक गर्भवती और नर्सिंग माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। महिला सशक्तिकरण हेतु पुलिस भर्ती में 10% महिला आरक्षण लागू कर दिया है। फलस्वरूप राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 10% की कमी आई है। साथ ही यह भी देखने योग्य है कि कन्विक्शन रेट 29 से बढ़कर 45% हो गया है। सन 2022 तक हर गरीब परिवार को घर और हर घर में पाइपलाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इन योजनाओं में अभी तक की प्रगति उत्साहवर्धक है। आर्थिक विकास का लाभ सभी को समान रूप से नहीं पहुंच पाता है और इस कारण बहुत से लोग विकास की दौड़ में हाशिए पर छूट जाते हैं। उन तक पहुंचने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाओं से पिछड़े और वंचित लोगों की सहायता कर रही है। लगभग 4 लाख से अधिक लोगों को सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपए भत्ता के रूप में देती है। स्थायी आजीविका के लिए मनरेगा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 1,10,000 वनवासियों को सहायता दी गई है। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हजारों छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि उन्हें शिक्षा का लाभ और समान अवसर प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि त्रिपुरा छोटा होने के बावजूद विविधताओं से भरा है। यहाँ सभी धर्म, संप्रदाय एवं विचार के लोग आपसी सामंजस्य और सद्भाव के साथ रहते आए हैं।
हमारे राज्यवासी इस परंपरा का निर्वहन करने में भविष्य में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। त्रिपुरा राज्य की एक बड़ी समस्या मिजोरम से त्रिपुरा में बसे ब्रू जनजाति समुदाय के लोगों को त्रिपुरा में बसाएं या मिजोरम वापस भेजें, यह समस्या केंद्र सरकार व त्रिपुरा में राज्य सरकार के पहल से समाप्त हो गया है, जिसके कारण ब्रू जनजाति के लोगों को त्रिपुरा में ही सम्मान पूर्वक बसाया जाएगा। त्रिपुरा का भविष्य सुंदर और उज्जवल है। आगे आने वाले वर्षों में यह नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर एक संपन्न और समृद्ध राज्य बनेगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। 71वें गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर मैं पुनः सभी नागरिकों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद।
空